Bismillahirrahmanirrahim. Modern Language School, Item 2 Campus, Islamabad. Today the date is 16th September 2020. Today class we will do a grammar book, an activity book and a sound book. It is for class 1. So firstly, children, pick out your sound books. Now class, it's sound book page number 18. Firstly, write a date, that is 16th September 2020. Okay. Now A and I sound, ठीक है. The mail van is waiting for the train. It is raining. Nail, jail, stain. Read. Bail, fail, mail, nail, pale, tail. Sail, hail, whale, jail, rail, trail. Rain, train, main, pain, stain, brain, chain, plane, Spain, bait, gate, wait, made, paid, laid, raid. Now the next is note. Bail, pale, mail, tail, sail, it is sad. Hail, bail, pale, mail, tail, sail, hail, air, fair, stare, pair, chair, hair. Now the next is page number 19. It's page number 19. FR sound, first sound. Look at Freda. She is frying a fresh fish in a frying pan. Her friend is looking at a frog. She has a frilly frog. The frog is free, but it is afraid. It is afraid of Freda and her frying pan. Read. From, fresh, afraid, free, fry, frog, fret, frill, frail, freeze, frock, frame, freak, froze, frozen, fruit, friend. Now class, pick out your activity book. Now class, it's an activity book, page number 45. You can see it. Write a date, 16th September 2020. Now I have written date. Read comprehension. Reading comprehension. Exercise 3F. Jack and Tommy. Read the poem below. Now we will read a poem. Jack has a friend named Tommy. Underline these words. Friend, Tommy, whom he met at a birthday party. Birthday party. Whom the two boys like each other. Other. And spend a lot of time together. Spend together. Jack has straight hair and is rather tall. He's a Jack and he is Tommy. Jack has straight, underline this word here, and is rather tall. Rather, underline this word. Tommy is a little skinny and quite small. Skinny, quite, Tommy. Underline these words. Jack has a tan and looks quite fit. Jack has a tan and looks quite, again underline this word, fit. Tommy does not like the sun one bit. Now one bit. Now the next page. Page number 46. Now it's page number 46. Jack loves joking all day long. Joking. He will entertain you with a song. Entertain. He is always cloning around. Cloning. Always. Laughing and rolling on the ground.
laughing and rolling on the ground. ठीक है, अंडरलाइन करते रहें साथ साथ. ठीक है. Jack is real good at sports. His coach always gives him a good report. Coach report. From tennis, swimming to football. Swimming, tennis, football. Underline these words, okay? Jack is good at them all. Tommy is the shy and quiet sort. Quiet, shy sort. He doesn't like to talk a lot. He appreciates a good joke or two. Appreciates. But there are other things he prefers to do. Prefers. Reading is Tommy's favorite hobby. Favorite. From comics and fantasy to adventures and mystery. Now underline these 4 words. Comics, fantasy, adventures, mystery. ठीक है. You will see him turning the pages. Turning. He can sit and read for ages. Pages, ages. Now next page. The two friends are as different as can be. It's page number 47. But they get along quite famously. There is no secret. It's all quite simple. Secret, simple. They just learn to accept each other. Accept. Okay. Now I will explain this poem in Urdu. Okay class, it's again 45 page. In first stanza, they are telling that Jack and Tommy are both our friends, okay, and they met at the birthday party. वो एक टॉमी और जैक जो है वो 2 फ्रेंड्स हैं, जिनमें से ये दोनों कहाँ मिले, एक बर्थडे पार्टी पे मिले. द 2 बॉयज़ लाइक ईच अदर, वो अपने एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं. एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, और अपना एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब काफ़ी टाइम गुजारते हैं. ओके. नाउ इन सेकेंड स्टैंजा, जैक हैज़ स्ट्रेट हेयर एंड इज़ रादर टॉल. जैक की बात हो रही है कि जैक जो है वो थोड़ा लंबा है और उसके स्ट्रेट हेयर हैं, बिल्कुल उसके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हैं. टॉमी इज़ लिटिल स्किनी एंड क्वाइट स्मॉल. अच्छा, टॉमी जो है वो थोड़ा सा पतला सूखा सा है और थोड़ा छोटा है, हाइट में छोटा है. जैक हैज़ अ टैन एंड लुक्स क्वाइट फिट. जैक जो है ना वो थोड़ा सा फिट लगता है, कूल सा लगता है. टॉमी डज़ नॉट लाइक द सन 1 बिट, मतलब टॉमी जो है वो उसके मुकाबले में थोड़ा सा कम कर लो. ठीक हो गया. नाउ द नेक्स्ट पेज इज़ 46. नाउ इट्स पेज नंबर 46 अगेन. जैक लव्स जोकिंग ऑल डे लॉन्ग. जैक जो है वो बड़ा मजाकिया सा है, जोक करता रहता है हर वक्त, बस मजाक करता रहता है. ही विल एंटरटेन यू विद अ सॉन्ग, और वो गाने भी सुना सकता है. ठीक हो गया. ही इज़ ऑलवेज क्लोनिंग अराउंड. क्लोनिंग अराउंड मतलब हर वक्त जोकरों की तरह फिरता रहता है, हर वक्त हंसाता रहता है, घूमता फिरता रहता है. लॉफिंग एंड रोलिंग ऑन द ग्राउंड, और हर वक्त एक तो जोक सुनाता है और ऊपर से हंसता भी बहुत है. ठीक है, हंसता रहता है बस. लॉफिंग एंड रोलिंग ऑन द ग्राउंड, और वो इतना हंसता है कि उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि वो ज़मीन पर रोलिंग करना शुरू हो जाता है. इतना कभी कभी होता है ना, हम कितना ज़्यादा हंसते हैं कि हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है और हम कहते हैं बस अब और नहीं, बस. और अभी हम बस कहते हैं और फिर दोबारा से हमें हंसी आ जाती है. तो वो वाली चीज़ है कि रोलिंग ऑन द ग्राउंड की बात हो रही है. ठीक है, कि मतलब ज़मीन पे अपने आप को लौटना खुशी से, हंसी से. जैक इज़ रियल गुड एट स्पोर्ट्स. जैक जो है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है. ठीक है. हिज कोच ऑलवेज गिव्स हिम अ गुड रिपोर्ट, मतलब उसका जो कोच है, जो उसके ट्रेनर हैं, वो हमेशा इस चीज़ की अच्छाई करते हैं कि इसने बहुत अच्छा बच्चा है ये स्पोर्ट्स में. फ्रॉम टेनिस, स्विमिंग टू फुटबॉल. टेनिस लो, स्विमिंग लो या फुटबॉल लो, तीनों में वो बहुत अच्छा है. जैक इज़ गुड एट ऑल ऑफ देम. वो हर स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा है, टेनिस पे भी, टेनिस खेलने में भी, स्विमिंग में भी और फुटबॉल पे भी. नाउ टॉमी की बात हो रही है अब. टॉमी इज़ द शाई एंड क्वाइट सॉर्ट. जो टॉमी है ना वो थोड़ा सा शाई है और ना थोड़ा चुप रहता है. ही डज़ नॉट लाइक टू टॉक अलॉट. उसे अच्छा नहीं लगता बहुत ज़्यादा बातें करना टॉमी को. जैक को जिस तरह बोलना पसंद है तो टॉमी को बिल्कुल भी बोलना पसंद नहीं है. ही डज़ नॉट लाइक टू टॉक. ओके. नाउ ही अप्रिशिएट्स अ गुड जोक और टू. अच्छा, अब क्या होता है कि जब वो जैक जो है वो जोक सुनाता है तो टॉमी जो है वो उसको थोड़ा बहुत अप्रिशिएट कर देगा, हाँ अच्छा है तुम्हारा जोक ये वो. बट देयर आर अदर थिंग्स ही प्रेफर्स टू डू. लेकिन उसके पास और भी बहुत से काम है करने के लिए, वो और भी चीज़ों को प्रेफरेंस देता है, इंपॉर्टेंस देता है काम को. ठीक है. रीडिंग इज़ टॉमीज़ फेवरेट हॉबी. रीडिंग करना टॉमी को बहुत ज़्यादा पसंद है. फ्रॉम कॉमिक्स, फैंटेसी टू एडवेंचर्स एंड मिस्ट्री. नाउ कॉमिक्स की मज़ाया, फैंटेसी जिसमें फैंटेसी हो, मतलब थोड़ा फेरी टेल टाइप,
और एडवेंचरस जो हो बुक्स या मिस्ट्री की हो, कुछ भी हो इन चारों में से कोई भी, तो वो उसको पसंद है, रीडिंग पसंद है उसे असल में। यू विल सी हिम टर्निंग द पेजेस, आप उसे हर वक्त अपनी मतलब किताब के पेजेस टर्न करते हुए देखेंगे, मतलब वो कुछ ना कुछ रीडिंग कर रहा होता है। ही कैन सिट एंड रीड फॉर एजेस, और वो बैठता है और उसके बाद फिर वो उसका बस चले तो वो सारी ज़िंदगी तक पढ़ता ही रहे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज अगेन, दैट इज़ पेज नंबर 47। द टू फ्रेंड्स आर एज डिफरेंट एज कैन बी, वो दोनों फ्रेंड्स हैं तो वो फ्रेंड्स कहने को, लेकिन वो दोनों बहुत डिफरेंट है, मतलब उनकी नेचर बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। बट दे गेट अलॉन्ग क्वाइट फेमसली, लेकिन उसके बाद वो इसी में वो आहिस्ता आहिस्ता फेमस होना शुरू हो गया, मशहूर होना शुरू हो गया। देयर इज़ नो सीक्रेट, इट्स ऑल क्वाइट सिंपल, उनके दरमियान में कोई सीक्रेट नहीं है, कोई राज वगैरह नहीं है कि एक बच्चा दूसरे से कुछ छुपाए, नो, सिंपल सी सिर्फ ये बात है। दे जस्ट लर्न टू एक्सेप्ट ईच अदर, लेकिन वो सब जानते हैं कि हमने एक दूसरे को किस तरह एक्सेप्ट करना है, ठीक है। इस पोएम से हमें मेनली जो सबक मिलता है ना वो ये होता है कि किसी की खामियां या किसी की बुराइयां तलाश करने से पहले हमें ये चाहिए कि हम ये सिर्फ ये देखें कि वो मेरा फ्रेंड है, दैट्स इट। अगर उसके अंदर कोई अच्छाई है तो ओके, उसको चीज़ को एक्सेप्ट करें कि येस ही इज़ अ गुड पर्सन। बट अगर उसमें कोई बुराई है तो ये नहीं कि उसे आप छोड़ दें कि नहीं भाई इसके अंदर तो इतनी ज़्यादा बुराई है तो मैंने तो छोड़ देना है इसको, तो ये ना हो कि मैं इसकी वजह से मैं ख़राब हो जाऊँ, नो, ऐसे नहीं करती, ये बुरी बात होती है। हमेशा हर एक का साथ देना चाहिए। अगर किसी के अंदर कोई बुराई है तो आपको चाहिए आप उसको एक्सप्लेन करो, यार तुम्हारे अंदर ना ये बुराई है तो इस चीज़ को ना ख़त्म कर लो। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से कि भाई तुम्हारे अंदर ये बुराई है ख़त्म करो इसको वरना मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, नो, बड़े तमीज़ से बड़े प्यार से उसकी चीज़ों को एक्सेप्ट करना। किसी के अंदर कोई अच्छाई है तो चाहे आपका दिल ना भी कर रहा हो, चाहे आपका दिल ना कर रहा हो कि भाई हमने इसकी बात नहीं सुननी ये बोल, लेकिन नहीं, गुड मैनर्स ये हैं कि आप उसे तमीज़ से बात करें, उसकी बात को फुल अपनी कंसंट्रेशन रखें उसकी बात पे, मतलब फुल अपना फोकस उसकी बात पे रखें। उसे बात करते हुए कभी भी ये फील ना हो कि भाई ये मेरी बात नहीं सुन रहा या मेरी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, इस तरह अगले बंदे की तौहीन होती है, वो कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाते हैं कि ये मेरी बात नहीं सुन रहा, मतलब ये बैड मैनर में आते हैं, ठीक हो गया। इट मीन्स इस पोएम में इस बात को एक्सप्लेन किया गया है कि दो बच्चे हैं, उनकी नेचर बहुत डिफरेंट है, हर बच्चे की नेचर बहुत डिफरेंट होती है, हर बच्चे में अच्छाइयाँ बुराइयाँ, हर बच्चे क्या हर इंसान में अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं, बट उसकी नेचर में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उन दोनों ये दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, मानते हैं कि ठीक है, और एक दूसरे के साथ वो रहना जानते हैं हंसी खुशी, ठीक हो गया। नाउ वी विल डू एन एक्सरसाइज दिस, read the sentences below, then write T in the brackets if the statement is true and F if the statement is false. Okay, now you have to put the you would pick or write T for true statements and F for false statements. Okay, Jack enjoys outdoor activities. Now tell me. Yes, it's true because he likes sports. Jack does not make new friends easily. False. ही इज़ वेरी सोशल पर्सन, ज़्यादा बोलने वाला इंसान हमेशा सोशल होता है, इस बात को याद रखिएगा। जैक इज़ नॉट गुड एट बास्केटबॉल। फॉल्स, ही इज़ गुड एट ऑल स्पोर्ट्स। टॉमी enjoys रीडिंग बाय हिमसेल्फ। ट्रू, yes, he likes reading. The two friends get along well because they do not mind being different from each other. Yes, true. वो इसलिए साथ हैं क्योंकि वो कभी माइंड नहीं करते, उन्हें बुरा नहीं लगता कि हम एक दूसरे की चीज़ों मतलब वो एक दूसरे की चीज़ों को बुरा नहीं मानते। अगर किसी के अंदर कोई बुराई है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, किसी के अंदर कोई अच्छाई है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। ओके, नाउ क्लास यू कैन सी इट, हमने ये भी कर लिया है। नाउ पिक आउट योर ग्रामर बुक्स। नाउ क्लास इट्स ग्रामर बुक पेज नंबर 30, लेसन 8 एडजेक्टिव्स। फर्स्टली राइट अ डेट, 16 September 2020. The topic is adjectives. 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 It's not 15, okay? It's 16. Okay, adjectives. Now I teach you in last. I taught you I taught you in last video about adjectives, and the that adjective was a possessive adjective. सही है? So फर्स्टली वी विल एक्सप्लेन द एडजेक्टिव्स। जब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँगी देन आपको वो थोड़ा और आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, दे हेल्प डिस्क्राइब नाउन्स। नाउ दे डिस्क्राइब
नाउन्स, दे हेल्प टू डिस्क्राइब अ नाउन, किसी नाउन के बारे में एक्सप्लेनेशन देने को एडजेक्टिव कहते हैं। किसी नाउन के बारे में कोई चीज़ एक्सप्लेन करे, कोई वर्ड, तो उस वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। ऑल कलर्स आर एडजेक्टिव्स टू, कुछ सारे जो कलर्स हैं वो भी एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। अंडरलाइन दिस वर्ड एडजेक्टिव्स। नाउ डिस्क्राइबिंग, okay, cold water. Now water is a noun and cold is the quality of a noun, like क्वालिटी ऑफ वाटर के पानी जो है वो ठंडा है या गर्म है। देखें एडजेक्टिव क्या होते हैं, किसी चीज़ की क्वालिटी या क्वांटिटी को एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है। किसी चीज़ की क्वालिटी या क्वांटिटी को एडजेक्टिव्स कहते हैं। किसी चीज़ की क्वालिटी है ना, उसकी गुड क्वालिटी हो और बैड क्वालिटी हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई कुछ भी, हम उस चीज़ को एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि कोल्ड वाटर, अब पानी है, वाटर इज़ अ नाउन, सही है, पढ़ा है ना, पानी जो है वो नाउन है। अब पानी के बारे में एक्सप्लेनेशन क्या दी जा रही है कि कोल्ड है, ठंडा है, तो दैट वुड बी एन एडजेक्टिव, ठीक है, कि उसकी क्वालिटी बता रहे हैं ना कि भाई कोल्ड है वो। नाउ टॉल बिल्डिंग इज़ अ नाउन एंड टॉल वुड बी एन एडजेक्टिव, जो एक्सप्लेन कर रहा है बिल्डिंग के बारे में कि बिल्डिंग जो है वो टॉल है या शॉर्ट है, कैसी है, ठीक है। अच्छा, नाउ रेड बस, दिस इज़ अ रेड बस इज़ अ नाउन एंड रेड वुड बी इट्स मोर डिस्क्रिप्शन। रेड जो है वो बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं ना बस के बारे में, और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ये रेड है, तो दैट वुड बी एन एडजेक्टिव, रेड वुड बी एन एडजेक्टिव। हेयर कोल्ड इज़ एन एडजेक्टिव, हेयर टॉल इज़ एन एडजेक्टिव, हेयर रेड इज़ एन एडजेक्टिव एंड हेयर न्यू इज़ एन एडजेक्टिव, ठीक है, क्योंकि वो शर्ट के बारे में बता रहे हैं कि वो न्यू है। ओल्ड शर्ट भी कह सकते हैं, अगर हम ओल्ड शर्ट कहते हैं ओल्ड वुड ऑल्सो बी एन एडजेक्टिव, ठीक है, कि वो पुरानी शर्ट है, एक्सप्लेनेशन होगी ना शर्ट के बारे में, ठीक है। सो अब अगेन हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमें पता लगेगा। ओके, इट्स पेज नंबर 31। एक्सरसाइज ए, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नाउ अंडरलाइन द वर्ड्स और एडजेक्टिव्स इन दीज सेंटेंसेस, ठीक है। आई लाइक दिस ब्यूटिफुल हैंड बैग। नाउ हैंड बैग इज अ नाउन and beautiful is an explanation of this handbag, so underline this word beautiful is an adjective, okay. Now next is Mrs. Shah is an excellent teacher, so excellent teacher is a noun and excellent is the word or quality of a teacher, ठीक है। टीचर की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं कि भाई वो बहुत एक्सीलेंट है, बहुत अच्छा पढ़ाती है। Now Peter lives in that old building. Now building is a noun and old is an adjective. बिल्डिंग के बारे में बता रहे हैं ना कि वो ओल्ड है या न्यू है या जैसी भी है, एक्सप्लेन कर रहे हैं ना बिल्डिंग के बारे में। Alex drives a big car. Big car is a noun and big is an adjective. Sarah will wear the blue dress tonight. Blue, it's an explanation of that blue dress, okay. Now next page 32.